Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer physics, PCGP, Resonance, Kota. So now I will start the lecture, that is 11, lecture 11 of light. Okay, it is human eye. Construction and वर्किंग। तो सबसे पहले हम वी विल ड्रॉ द फिगर। ओके, फिगर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले हम। इट इज आई लेंस। ये दोनों रेडियस इक्वल नहीं होती इसकी। ओके, इट इज आई लेंस। इधर ये होता है सिलरी मसल्स। These are the ciliary muscles. ओके, अभी लिखेंगे कौन सा पार्ट क्या है इसका। ओके, इट इज कॉर्निया। ओके, लिखते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं इसके। देखिए, इट इज रेटिना, ये वाला पोर्शन, ये कुछ इस टाइप से होता है। ओके, सारे पार्ट्स लिखते हैं। व्हाट आर द पार्ट्स? तो नंबर फर्स्ट इज इट इज स्क्लेरा और वाइट ऑफ आई। ओके, दीज आर द सिलरी मसल्स। इट इज आइरिस, इट इज कॉर्निया, इट इज प्यूपल। यहां जो लिक्विड होता है इट इज एक्वस, ह्यूमर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.336। ये विट्रस, ह्यूमर, इसका म्यू है दैट इज 1.336। If the refract medium of both sides of the lens are equal, same mu, then the two focal lengths f1 and f2, the distance from optical center of first focus and principal focus will be equal. ये eye lens, it is eye lens, इसमें लिक्विड होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये mu is 1.396. ओके, इट इज choroid, it is retina, it is that is midpoint of the retina. It is optic, and it is known as blind spot. Okay, so what are the parts of eye? Number one is sclera, white of eye. Number two is ciliary muscles. Third is that is iris. Fourth is cornea. Fourth is pupil, and fifth is cornea,
aqueous humor, seventh is vitreous humor, so eighth is choroid, 9 is eye lens, 10 is retina, 11 is optic nerves, 12 is blind spot. Okay, these are the parts of eye. Now we will discuss each part and what are the functions of each part. सबसे पहले what is sclera or known as white of eye? It's the outer cover. सिर्फ कॉर्निया को छोड़ के सारी आई पर आउटर कवर होता है. आउटर कवर इट्स द हार्डेस्ट एंड white in color hardest part. It's the cover of eye. Okay, known as sclera or white of eye. ये कलर में white है इसलिए white of eye बोलते हैं. It protects the eye from the shocks. Protect the eye, ये सारे पर यही होगा, that is known as sclera. केवल कॉर्निया को छोड़ के. Okay, the use of this one is, क्या फंक्शन है इसका? It protects the eye from the shocks. ये पहला पार्ट. अब सेकंड पार्ट देखिए, इट्स द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट देखिए, ciliary muscles. Ciliary muscles, ये these are the ciliary muscles. And what is the function of the ciliary muscles? These are the two functions of ciliary muscles. Ciliary muscles के there are two functions of. First function is it hold the eye lens at its place. अपने place पर ही रखेगी. It hold the eye lens at its place. Second है इसका that according to need it will change the focal length of eye lens by increasing or decreasing the pressure. लेंस ऐसा है और सिलरी मसल्स यहाँ पर हैं. प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा. रेडियस कम, ओके, रेडियस कम होगा तो फोकल लेंथ भी कम हो जाएगी. अगर मैं कर दूँ तो ऐसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा. तो अकॉर्डिंग बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन लेंस इट कैन चेंज इट्स रेडियस, so its focal length change. So according to need, with the help of ciliary muscles, by increasing or decreasing the pressure, the eye will change the focal length. According to need means image always form on retina. Okay, it is the two functions of the ciliary muscles. Number third is that is iris. Iris is the colored membrane. जो black दिख रहा है, it is colored membrane with central hole. ये iris होता है. फोर्थ, colored membrane with central hole. ऐसे होल होता है. इसका कलर डिपेंड करता है आप कहाँ के रहने वाले हैं. ये कुछ ब्राउनिश भी होता है, ब्लैक भी होता है. ये it is iris, colored membrane. According to need, the length, the size of this hole may change. This hole, okay. According to what is the function of this iris? It controls the eye, controls the light which will enter the eye. According to these, इसका जो है pupil का, इसका साइज जो है, होल का साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा. तो according to need, the size of hole can increase or decrease. So it will control the light which will enter the eye. Now next part है इसका pupil. Pupil is the central hole है, that is central hole in iris is known as pupil. ये जो hole है ना, it is also known as. तो according to need, the size of this central hole means pupil will increase or decrease. So it will control the eye, control the light which will enter the eye. जैसे हम एकदम लाइट में जा रहे हैं तो ये होल कम हो जाएगा जिससे कम लाइट एंटर करे, और अगर डार्क में जा रहे हैं तो ये होल का साइज इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि डार्क में वैसे ही लाइट कम है. तो इट कंट्रोल्स द लाइट.
Look at the people. Next is fifth is, that is cornea. Cornea. ये कवर जो, it is known as cornea. This part, it's completely spherical. Completely spherical. एक चीज और इंपॉर्टेंट बताएं, दिस कॉर्निया एंड दिस एक्वस ह्यूमर ये मिलके एक लेंस बनाते हैं. एक तो आई लेंस है ही और एक ये लेंस है कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर. दे विल आल्सो बिहेव जस्ट लाइक, एंड कंबाइंड इफेक्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो रेटिना पर बनता है. क्लियर? अगेन व्हाट इज कॉर्निया? कॉर्निया ये वाला जो व्हाइट ऑफ आई, व्हाइट दिखता है आई में व्हाइट दिखता है, इट इज व्हाइट ऑफ आई, इट इज कंप्लीटली स्फेरिकल. और दिस कॉर्निया एंड एक्वस ह्यूमर ये मिलके बनाते हैं एक लेंस की फॉर्म करते हैं. एक लेंस आई लेंस है, एक ये फॉर्म होता है, और कंबाइंड इफेक्ट से, दोनों लेंस के कंबाइंड इफेक्ट से इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल फॉर्म ऑन रेटिना. ओके, नेक्स्ट कॉर्निया के बाद है प्यूपिल. एक्वस ह्यूमर, सिक्स्थ एक्वस ह्यूमर. एक्वस ये वाला, इट इज वाटरी टाइप, वाटर जैसा होता है, वाटरी टाइप, बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.336. इट्स द लिक्विड बिटवीन द आई लेंस एंड द कॉर्निया. द लिक्विड बिटवीन आइरिस, दिस आई लेंस एंड कॉर्निया इज नोन एज एक्वस ह्यूमर. इट इज वाटरी टाइप एंड इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.336. अब इसके बाद आता है दैट इज विट्रस ह्यूमर. वो यहाँ होता है विट्रस ह्यूमर. इट इज विट्रस ह्यूमर. ओके, ये विट्रस ह्यूमर इट इज जेली टाइप, बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर इज इक्वल. बिकॉज हमारी प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे ये लेंस है, इधर लिक्विड और इधर लिक्विड सेम है, सेम मीडियम है, तो ये एफ प्रिंसिपल फोकस और ये एफ डैश, ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है. एफ और एफ इक्वल ही आई दोनों की. वट एवर मे बी द रेडियस R1 एंड R2 डिफरेंट हो सकते हैं, बट मीडियम ऑन बोथ साइड इज सेम. देन एफ ये डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस विल बी इक्वल. सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर इज इक्वल, सेम होता है. ओके, नेक्स्ट है ये कोरॉइड. कोरॉइड इट द इनर पार्ट ऑफ आई, इट इज ब्लैक इन कलर, कंप्लीट ब्लैक है कोरॉइड. ये कंप्लीट ब्लैक होता है वाला पोर्शन. What is the function of this one? If anyhow extra light enters the eye, then it will absorb. तो आई को डैमेज नहीं होने देगा, मीन्स दिस रेटिना को डैमेज नहीं होने देगा. इट इज ब्लैक इन कलर एंड इट एब्जॉर्ब ऑल द एक्स्ट्रा लाइट विच विल एंटर द आई. तो इट इज कॉरॉइड. अब आता है लेंस, आई लेंस. आई लेंस इट इज कॉन्वेक्स टाइप. इसका रेडियस डिफरेंट होता है. ये अंदर का साइड कुछ रेडियस कम होता है, बाहर के साइड का रेडियस ज़्यादा होता है, और इसके दोनों तरफ है एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर. इट इज़ क्लियर? अकॉर्डिंग टू नीड ये मेम्ब्रेन होती है. अकॉर्डिंग टू नीड वी कैन चेंज द रेडियस ऑफ आई लेंस, सो वी कैन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. दीज आर द पार्ट्स. अब आता है रेटिना. रेटिना, रेटिना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. रेटिना, ये वाला पोर्शन रेटिना. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रेटिना? नंबर 1 इज inverted real image is formed on retina. First function, inverted real image is formed on retina. Is it clear? Second function और important है. Retina is made up of with the help of cones and rods. Retina जो होता है it is made up of cones and rods. Rods are responsible for intensity and cones are responsible for कलर. याद रखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट इसका देखिए. रेटिना के 3 फंक्शन. नंबर 1 इज रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड. सेकंड फंक्शन देखिए, इट इज मेड अप ऑफ कोन एंड रॉड्स. मेड अप of rods and cones. Rods are responsible for intensity
rods are responsible for intensity and cones are responsible for color. It is intensity. Is it clear? A color, mainly there are 3 cones. ये होता है R, B और G. 3 colors के cone. These are because it is primary colors. These are responsible for color. Cones are responsible. ठीक है ना? अगर इनमें से कोई एक कलर एब्सेंट है, फॉर एग्जाम्पल रेड कलर एब्सेंट है, तो द आई इज अनेबल टू सी, टू रिकॉग्नाइज द रेड कलर एंड ऑल द कलर्स विच आर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड कलर. इसके कॉम्बिनेशन से है या रेड कलर से है, उसको आई पहचान नहीं सकती है. क्लियर? इसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस. इफ एनी cone is absent on the retina, then that eye is unable to recognize that color and all the objects which are of the combination with that color. इस कलर के कॉम्बिनेशन से है और इस डिफेक्ट को कहते हैं दैट इज कलर ब्लाइंडनेस. ऐसे पर्सन को कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता. फॉर एग्जांपल रेड कलर एब्सेंट है, तो अगर ट्रैफिक लाइट पे खड़ा हुआ है तो रेड कलर हो रहा होगा, तब भी वो ही इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज, तो उसे ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता. और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, रेटिना ही चेंज की जाती है, रेटिना ही चेंज होगी. तो इट द सेकंड फंक्शन. नाउ व्हाट इज थर्ड फंक्शन? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या ऑप्टिकल सिग्नल्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ऑप्टिकल सिग्नल्स मतलब ऑप्टिकल सिग्नल्स को मीन्स इमेज को इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. दीज आर द 3 फंक्शंस ऑफ रेटिना. पहला है रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म. इट इज मेड अप ऑफ रॉड्स एंड कोन्स. रॉड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी एंड कोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर. मेनली जो कोन होते हैं RBG 3 साइज के कोन होते हैं, बट because these are the primary colors. Okay, if any cone of this color is absent, then that defect of eye is known as color blindness. Third है it converts optical signals into electrical signals. Clear है ना? These are the 3 functions. अब आता है मेन optic nerves. Optic nerves. The function of optic nerves is it sends the electrical signals to brain. जो रेटिना ने कन्वर्ट किए थे, वो ऑप्टिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया था. तो दीज ऑप्टिक नर्व्स दे विल सेंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ब्रेन. एंड द ब्लाइंड स्पॉट होता है द जंक्शन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट. इस पर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अगर लाइट का इफेक्ट पड़ेगा तो इट में डैमेज, मीन्स कनेक्शन बिटवीन द रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व विल ब्रेक. तो हमारे सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे थे वो ब्रेन को नहीं पहुंचेंगे. वी विल बी अनेबल टू रिकॉग्नाइज दैट. तो इट द जंक्शन ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट. ओके, इस पर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता. तो दीज आर द पार्ट्स. अब ए मेन इंपॉर्टेंट और देखिए अबाउट कॉर्निया. कॉर्निया इज कंप्लीटली स्फेरिकल. अगर ये स्फेरिकल नहीं है तो देयर विल बी ए डिफेक्ट. ओके, दैट इज नोन एज एस्टिग्मेटिज्म. व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म? एस्टिग्मेटिज्म है अगर कॉर्निया कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, कहीं से भी कॉर्निया ये होनी चाहिए थी, अब ये ऐसे हो गई, तो क्या होगा? देयर विल बी ए डिफेक्ट. दैट इज नोन एज एस्टिग्मेटिज्म. ये क्या है? जैसे मैं वायर गेज देख रहा हूं, ऐसा वाला वायर गेज. ओके, ये वायर गेज देख रहा हूं. अगर डिफेक्टेड आई है तो उसको या तो ऐसे दिखेगा, ये स्ट्रेट दिखेंगी. ओके, और या फिर ऐसे दिखेगा. इस तरह से दिखता है. इट नोन एज एस्टिग्मेटिज्म. इसका भी टू रिमूव इट वी विल यूज थिक लेंस, सिलेंड्रिकल लेंसेज. एक सिलेंडर बना लूंगा ऐसा ग्लास का,
थिक लेंस यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस आर यूज टू रिमूव दिस, दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। दिस मिड पॉइंट, अगर मुझे क्लियर दिख रहा है कोई इमेज, इट मीन्स इट इज फॉर्म्ड ऑन द एट द मिड पॉइंट ऑफ रेटिना, ओके। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ आई। अब देखते हैं व्हाट इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन अब थिंक अबाउट, मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो मेरी आई पे उसका इमेज बन रहा होगा ऑन बोथ आई, कन्फर्म। अब मैं थोड़ी देर में ये ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, थोड़ी देर में ये ऑब्जेक्ट देखूंगा मैं, तो द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टे ऑन रेटिना फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए स्टे करता है, क्लियर है ना। अगर मैं ऑब्जेक्ट को आई के सामने से रिमूव कर दूं तब भी कुछ टाइम तक इमेज मेरी रेटिना पर बना रहेगा, दैट नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन, क्लियर है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अभी इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, थोड़ी देर में इसको देखूंगा, अगर ये रिमूव हो गया, नहीं हुआ, तो ये दोनों के इमेज दे विल कोइंसाइड और मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाऊंगा कौन सा इमेज दिख रहा है। अगेन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना विल स्टे फॉर सम टाइम इवन दैट द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रॉम द आई। अगर मैं आई के सामने से ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दूं तब भी कुछ टाइम तक स्टे करता है। दिस टाइम इज 1/16 सेकंड। दिस परसिस्टेंट टाइम इज 1/16 सेकंड, मतलब इमेज ऑन रेटिना विल स्टे अप टू 1/16 सेकंड्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड। अगर ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दूं तब भी इतने टाइम तक रहता है, ओके। अब इसका सबसे अच्छा यूज है सिनेमेटोग्राफी में हम 24 इमेजेस लेते हैं पर सेकंड, 24 इमेजेस पर सेकंड लेते हैं, ओके। इतने फास्ट लेते हैं कि एक का, जैसे एक इमेज दिखा था, पिक्चर लिया था, एक फोटो लिया था मैंने, दूसरा फोटो लिया मैंने, और वो मेरी आई पे पहुंचने से जस्ट खत्म होने से पहले ही, जस्ट खत्म होने वाला था, तब तक दूसरा इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो इमेज दिखेंगे मुझे एकदम सटे हुए दिखेंगे, मिले हुए दिखेंगे, दे विल मिक्स। तो मुझे ऐसे में ऐसा लगेगा कि मूविंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा वो मूविंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो इट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन इज यूज्ड इन सिनेमेटोग्राफी। नाउ डिस्टेंस, क्लियर विजन ऑफ least distance of clear vision. What is the least distance of clear vision? The minimum distance from the eye up to which the eye can see clearly without any pressure on retina. रेटिना पर बिना किसी नॉर्मल आई पर मैं आई को कहाँ तक देख सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल इट इज आई, जहां तक देख सकता हूं, इट इज नियर पॉइंट, और दिस डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर। दिस 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई इट नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई। अगेन इट द नियरेस्ट पॉइंट, लीस्ट डिस्टेंस और फार डिस्टेंस होती है इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल मून को भी देख सकता हूँ, स्टार्स को देख सकता हूँ, क्लियर। तो far distance of clear vision is infinity, but the least distance of clear vision is 25 centimeter. This 25 is also denoted by capital D. Capital D means 25 centimeter. At this point is known as near point of eye. Is it clear? एक चीज और बता दें, आई का जो साइज होता है, ये वाला साइज, ये ज़्यादा होता है और ये कम होता है। ये जो साइज होता है, ये होता है 24.5 mm और ये होता है 24 mm, बहुत कम डिफरेंस होता है, 24.5 mm, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, it is constant, that is how much? 2.45 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर होती है, फिक्स है। दिस डिस्टेंस इज 2.5 सेंटीमीटर, ओके।
द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना इट इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट दिक्स, ये जो लेंस है ना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है लेंस का 1.396, और आपने पढ़ा था 1/f इसको होता है म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो सराउंडिंग में म्यू एस तो वही है 1.336 और म्यू एस है इसका 1.396, बट R1 एंड R2 दे विल चेंज अकॉर्डिंग टू नीड। मैं किस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो इसका फोकल लेंथ भी चेंज होता रहेगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट थिंग दिस वन, अगर ऐसे है प्रेशर इंक्रीज हो, सेलरी मसल्स अगर प्रेशर इंक्रीज कर दें लेंस पर तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। फिर से देखिए, सेलरी मसल से प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो लेंस थिन के बजाय क्या होगा, थिक हो जाएगा, होगा ना, थिक होगा, मीन्स रेडियस विल डिक्रीज। ऐसे था ना, रेडियस ज़्यादा, ऐसे कर दिया मैंने, तो रेडियस विल डिक्रीज, और यू नो 1/f इज 1/r, रेडियस को डिक्रीज करूंगा तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ना। अगर मैं प्रेशर को रिलीज कर दूं तो ऐसे हो जाएगी, ये पतला हो जाएगा, आर विल इंक्रीज, ये रेडियस इसका, R1 R2 विल इंक्रीज, R1 R2 इंक्रीज होगा तो फोकल लेंथ भी इंक्रीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू नीड वी कैन चेंज द, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो these are the functions of eye lens, and now you know what are the defects of eye. Okay,